Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today in this video, I will tell you about the second year roadmap and especially I will focus on the what should be your third semester roadmap guys. Okay, so first of all, I will basically welcome you all to the second year guys. Okay, I know you have traversed or basically in a long 1 year journey you have learned a lot. Okay, आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत कुछ समझा है कि क्या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए. Okay, but as a your senior, I will basically want to guide something about the third semester. Okay, I will also tell you what are the mistakes that I have done that you should not repeat. Okay, जो कि आपको repeat नहीं करना चाहिए guys. Okay, so before moving to the video guys, if you are new here to my channel, support my channel for getting such informative content. Okay, so let us come to the point guys. Okay, so जैसा कि मैंने कहा, first of all welcome all of the first year to the second year, that is in the third semester guys. Okay, एंड आप लोग तो बहुत ही एक्साइटेड होंगे, बहुत खुशी होंगे कि अभी तो थोड़ा समर वेकेशन चल रहा है, बट यू आर वेरी एक्साइटेड टू इन अ सेकेंड ईयर. या एक्साइटेड होने की बात है, बट एक्साइटेड होने से ज़्यादा भाई मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि नाउ प्लीज़ बी सीरियस, बी फोकस नाउ. ओके, क्योंकि गाइज या नो डाउट यह खुशी का दिन है. बेसिकली कह सकते हैं कि आप बहुत ही आप लोग में एक्साइटमेंट है, हम लोग में एक्साइटमेंट था, एक्साइटमेंट रहना भी चाहिए बिकॉज यू आर गोइंग टू अ न्यू फेज. ओके, न्यू ईयर. And this year guys very important in context to the upcoming year. Okay, especially if you have a great focus on the placement. Okay, if you wanna grab good placement, good opportunity, internship and other thing, then this year is gonna very vital and important for you guys. Okay, that's why मैं बोल रहा हूँ कि खुशी तो होना है, बट या एज अ लिमिट में रहिए खुशी, बिकॉज यू विल बेसिकली फेस रियल थिंग फ्रॉम नाउ ऑन बार गाइस. ओके, मैं आप लोग को डराना नहीं चाहता हूँ कि आप लोग हाँ ये होगा नहीं, बट एक्चुअल स्टडी आपका यहाँ स्टार्ट होगा. ओके, बिकॉज एज यू नो गाइस दैट बहुत सारे कोई लोग सीएससी होंगे, आईटी होंगे, ईसी, मैकेनिकल, बट सबका फर्स्ट ईयर में सिलेबस सेम था. ओके, दैट्स वाई यू मे बी बोर, भैया मुझे क्या पढ़ना पड़ रहा है, मैंने जो 11th 12th में पढ़ा वही पढ़ा हूँ, बट मुझे क्यों रिपीटेशन हो रहा है. ओके, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू विल learn your core subject. Okay, you will learn your important subject guys. Okay, so moving to our next thing, that what are the point that I am going to cover in this video guys. Okay, first of all I will tell you what are the major changes that you will face in the second year. What should be your goal, आपका goal क्या रहना चाहिए. Okay, as a senior I will also tell you that what should you do and what should you not do. Next, very important things I will tell you about why should you don't depend on college. Okay, and next how to improve CGPA, because you know guys CGPA is very important for placement. And last, as a whole I will tell you that what should you do, what should not do. So coming to the important things like that, what is the change, major change in the second year. आप लोग बोलेंगे भैया कुछ नहीं, फर्स्ट का सेकेंड हो जाएगा. ओके, बट दैट्स अ फनी. ओके, मेजर चेंजेस गोना इन ईयर गाइस, जैसा कि मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि दैट मेजर चेंजेस विल बी दैट यू विल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू विल गेट सफिशिएंट टाइम. ओके, बहुत लोग को कंप्लेन था भैया पिछला मकआउट का, स्पेशली अगर आप मकआउट स्टूडेंट है तो 2 ही महीना 3 ही महीना खत्म गया. ओके, तो यू मे हैव अ डाउट, बट फ्रॉम नाउ यू विल गेट कंप्लीट 6 मंथ गाइस. एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. मेजर चेंजेस ये है कि यू विल लर्न बेसिक कंसेप्ट, यू विल लर्न, अगर आप CSE IT स्टूडेंट है तो यू विल लर्न DSA, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बार जोड़ दे रहा हूँ. ओके, एंड इफ यू आर अदर basically department student, then also a very important subject related to your branch will come. Okay, so that's why you will learn major things. So ये सब आप में चेंज आएगा. मेजर चेंज अदर आएगा कि guys now you will basically means you have to be focus on the various things. Okay, besides the curriculum activities. Okay, जैसे कि आपको GFG पे कोडिंग करना होगा, अदर प्लेटफॉर्म पे कोडिंग वगैरह अगर करना होगा, CSE IT स्टूडेंट है. ओके, दे आर द मेजर चेंजेस दैट विल कम. ओके, एंड यू हैव टू बी वेरी सीरियस पंक्चुअल फ्रॉम नाउ ऑन बार. ओके, जो भी आपने फर्स्ट ईयर में गलती किया होगा I will request you don't please repeat again. Okay, otherwise if you will miss this opportunity then you may face problem in the upcoming third year guys too. Okay, now what should be your goal. Okay, so from now your goal should be basically if you are basically wanting a good placement then you should be go toward the placement. Okay, अगर आप चाहते हैं कि मैं गेट फोड़ूँ या अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम में जाऊँ तो उस पर आप जाकर आप यहाँ पे 2 पाथ डिटरमाइन कर सकते हैं. रिमेंबर गाइस, यू कांट गो टू बोथ द पाथ. ओके, आप दोनों में से कोई एक पाथ को चूज कर ले कि मेरा गोल क्या है. इफ योर गोल इज टुवर्ड द प्लेसमेंट then you should stick to the placement. If your goal is toward the gate then you should go toward the gate guys. Okay, so this is the important things you should note in your mind. Coming to next very important things, and that I want to tell you that guys, अगर आप फर्स्ट स्टूडेंट है और मैंने पहले ही बोला था कि बिफोर स्टार्टिंग योर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर that you must not depend on college. And now I think that you have much prettier experience about this, that you should not depend on college. Okay, क्योंकि कॉलेज में मोस्ट ऑफ द कॉलेज वही पढ़ाई कुछ होता नहीं. ओके, मैं ये रियली फैक्ट बताऊँ, मोस्ट ऑफ द इंडियन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं होता. ओके, पढ़ाई के नाम पे बस
होता है, एंड आई थिंक दैट यू कैन कोरिलेट विद दिस फ्रॉम नाउ। ओके, पहले बोल रहा हूँ तो आप लोगों को लगा कि भैया ऐसी फेक रही है ये, आप कोरिलेट कर पा रहे हो कि कॉलेज में कितना पढ़ाई होता नहीं होता। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट नाउ चाइल्ड ऑन बोर्ड। ओके, college will just guide you that you will do this type of thing, you will do this type of internship, you will do this type of things. Okay, but they will not basically whatever thing that you will do, that matters a lot. Okay, यानी जो करना भाई आपको करना है, कॉलेज पे डिपेंड ना होगे। ओके, और स्पेशली कर रहा हूँ अगर आपको फर्स्ट सेकेंड ईयर में आ गए हैं और आपको पास अभी टाइम है 17-18 दिन अभी भी स्टिल रिमेनिंग समर वेकेशन, देन प्लीज यूटिलाइज दैट टाइम। स्पेशली इफ़ यू आर CSERT स्टूडेंट्स देन यू हैव टू इम्प्रूव योर DSA। अगर नहीं भी है तो भी ये आपको DSA वगैरह पे सबको लगभग पढ़ना है, तो ये सब इम्प्रूव करें। अदरवाइज कोर्स सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स अदर में, तो उसमें भी आप एक्सप्लोर करें, सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करें, खुद से मेहनत करें। ओके, डोंट डिपेंड ऑन थिंग्स। So guys, next important things as a grading system is very very important, you know very well guys. Okay, because to appear in a placement, especially I'm focusing on the placement, if you want to get good placement then you must have a basic CGPA that is above 7.5, that is mandatory for all. Okay, so अगर आपका फर्स्ट ईयर में थोड़ा CGPA डाउनग्रेड भी हुआ, मैं 6.5 6.4 हुआ, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, यू कैन नाउ इम्प्रूव फ्रॉम दिस सेमेस्टर। ओके, रिमेंबर गाइस, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ CSERT स्टूडेंट्स का इस साल मैथ्स भी थोड़ा टफ होने वाला है, EC का कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स अदर सब्जेक्ट वो भी थोड़ा टफ होने वाला है। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप लोग को डराना नहीं चाह रहा हूँ बट मैं आप लोग को सिचुएशन से अवेयर करना चाह रहा हूँ कि दैट या यू शुड अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके, दैट वाई यू हैव टू इम्प्रूव योर लर्निंग टू इम्प्रूव द ग्रेडिंग, एंड दैट इज वाई ग्रेडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CGPA किस तरह से इंप्रूव करना है गाइस, आई हैव ऑलरेडी मेड वेरियस वीडियो। ओके, फिर से बोलना चाहता हूँ, डोंट डिपेंड ऑन द लास्ट मंथ। ओके, आप लास्ट मंथ पे नहीं डिपेंड करें। बहुत लोग बोलते हो कि यार इंजीनियर होते हैं 10 दिन पढ़ाई करते हैं 15 दिन में एग्जाम देते हैं, बट उससे आप ज़्यादा अच्छा ग्रेड अच्छा ज़्यादा CGPA नहीं ला पाएंगे, एंड आई थिंक दैट यू कैन कोरिलेट फ्रॉम नाउ। ओके, then guys you can also join our telegram group for getting the notes, PDF, PPT। remember guys, जो भी PDF PPT रहेगा मैं उसी ग्रुप में शेयर करूँगा, तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप में डिस्क्रिप्शन लिंक है। ओके, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप एंड दैट इज गुड फॉर यू। ओके, जो भी रहेगा वो मैं शेयर करूँगा। ओके, नाउ गाइस व्हाट आर द समरी दैट आई वांट टू टेल यू, मींस एज अ बंच मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, दैट द एक्सपीरियंस दैट आई हैव लर्न इन द सेकेंड ईयर, दैट गाइस दैट first of all you have to relate all that subject very very carefully। okay, you have to make a proper plan in the second year। आपको proper plan से बनाना होगा, उसके अकॉर्डिंग चलने का कोशिश करना होगा। okay, at least you have to try। I know that you will face problem at a beginning, मुझे भी beginning में problem हो रहा था। okay, but you have to make some time। okay, अब आप ये भी आप बहाना नहीं मार सकते that या भैया I am getting just 2 month 3 month। okay, because from now onward you will get 6 month। and remember मैं बार बार कर रहा हूँ from second year now onward। okay, योर रियल जर्नी स्टार्ट्स ऑफ द BTech। ओके, ये 2 साल है, सेकेंड थर्ड। ओके, फोर्थ में तो आपका प्लेसमेंट भी जाएगा। ओके, दीज 2 years आर वेरी वेरी क्रूशियल, एंड इफ यू विल बेस्ट दीज 2 years देन यू मे फेस ग्रेट प्रॉब्लम गाइस इन अ फर्दर। ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट थिंग्स अबाउट दैट। आई होप दैट योर वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव टू यू। कोई भी डाउट है आप फील फ्री टू आस्क हियर। ओके, एंड एज आई ऑलरेडी सेड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर सपोर्ट। ओके, सो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव था। ओके, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको लगा शेयर कर देता हूँ। ओके, अगर आपको कुछ सीख मिला तो देन आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, सो दैट्स दिस मैसेज विल स्प्रेड टू ऑल। ओके, होप इन्फॉर्मेटिव टू यू। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।